بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ایس نالج ٹی وی۔ جیسا کہ دوستو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں دنیا میں کچھ نہ دکھنے والے جانوروں کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر دوستو آپ میرے اس چینل ایم ایس نالج ٹی وی میں نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو کیجئے سبسکرائب، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے دوستو ہمارے پاس موجود ہے گلاس آکٹوپس۔ دوستو وہ مخلوق جو ساحل سمندر کے قریب گہرے سمندر میں رہتی ہیں، وہ ریت یا چٹانوں سے گھل مل سکتی ہیں یا مرجان میں چھپ سکتی ہیں۔ گہرے سمندر میں یہ اکثر ویسے بھی کالا ہوتا ہے اور شکاریوں کی آنکھوں کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا پوشیدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوستو وہ جانور جو سطح کے قریب رہتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ بایولومائنس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ عمل میں روشنی کی چمکتی ہوئی نمائش پیدا کر سکتے ہیں، الجھے ہوئے شکاریوں کے نیچے جو سوچتے ہیں کہ وہ پانی کے سطح پر چلتی ہوئی دھوپ کو دیکھ رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ دوستو ایسا ہی ایک جانور شیشے کے نام آکٹوپس کے نام سے جو جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً مکمل طور پر شفاف ہوتا ہے۔ چینلس مخلوق 45 سینٹی میٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ قیمت شامل کریں یا دنیا بھر میں اکتوبر ہوا کو پانی میں سطح میں 1000 یا 300 میٹر نیچے رہتا ہے، اور اس کے نظام انصاف کے نظام جو آپٹیکل حساب اور آنکھوں کے علاوہ شکاریوں کے لیے تقریباً مکمل طور پر پوشیدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھیں اور ہمت ابھی تک دکھائی دے رہی ہیں تو آپ کے پورے جسم کو شفاف بنانے میں کیا فائدہ ہے؟ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ یہ اعضاء نیچے سمندری منزل پر سائے ڈالیں گے، جس سے وہ شکاریوں کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ آنکھوں کو کام کرنے کے لیے روشنی جذب کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے لیے شفاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوستو مشرومات اس کے ساتھ دھوکہ دہی کرتی ہے، لہذا جب تک کوئی جانور شفاف مادے پر کھانا نہیں کھائے گا وہ مری ہوگا۔ تاہم آکٹوپس شفاف مخلوق کے تمام میزبان اور ان مہبم اعضاء کو چھپانے کے لیے بڑی حد تک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیشے کے آکٹوپس کی آنکھیں بہت لمبی ہوتی ہیں جو اس کی پردی نقطہ نظر کو کم کرتی ہیں، لیکن اس کے سائے کو کم کرتی ہیں جو نیچے سے شکار کرنے والوں کے ذریعے پائے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ ثبوت دوستو یہ بھی موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے اس طرح مرکوز کرتا ہے تاکہ اس کے سائے کو کم سے کم دیکھا جا سکے۔ گلاس آکٹوپس وہ شفاف جانور نہیں ہے جو آنکھوں کو چھپانے کے لیے ایک ہوشیار طریقہ اختیار کرتا ہے۔ بہت سارے شفاف مولکس اپنی آنکھوں کو آئینے سے چھلکاتے ہیں، کیونکہ کلے سمندر میں آئینہ صرف مزید سمندر کے آغاز کرتی ہیں، وہ اس طرح پوشیدہ بھی ہیں۔ دوستو اب ہمارے پاس موجود ہے سکوائڈ کا شیشہ کمرہ، دوستو جس میں تقریباً 60 پرجاتیاں ہیں، تقریباً پوری طرح سے یہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دوستو ایک بار پھر سطح سمندر سے 200 اور 1000 میٹر کے درمیان دنیا بھر کے سمندروں کے پوشیدہ خطے میں یہ رہتی ہیں۔ اگرچہ ان کے جسم مکمل طور پر شفاف ہیں، ان کی بڑی آنکھیں محبم ہیں، جو ایک مسئلہ ہے کیونکہ نیچے تیزی سے آنے والے شکاری آسانی سے اپنے سائے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم شیشے کا سکوائڈ ان کو چھپانے کے لیے چلاوے کے چلاک شکل استعمال کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اعضاء فوٹو فورس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس چال میں روشنی پیدا کی جا سکے، جسے انسان ایلومینیشن کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ روشنی اوپر سے نیچے آتے ہوئے سورج کی روشنی سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، لہٰذا یہ سکوائڈ کو اپنے نیچے تیزنے والے شکاریوں کے لیے مکمل طور پر پوشیدہ بنا دیتا ہے۔ تاہم روشنی سکوائڈ کو دیکھنے والوں کو اگر دوسرے زاویوں سے دیکھنے کے لیے بہت زیادہ انتہائی نمایاں بنا سکتی ہے۔ پوشیدہ روشنی کی بجائے چمکتی ہوئی روشنی اس پر بینکن ڈرائنگ شکاریوں کی طرح کام کر سکتی ہے۔ پینسلوانیا یونیورسٹی کے محققین نے محسوس کیا کہ سکوائڈ فوٹو فورس حیرت انگیز طور پر اس قابل ہے کہ وہ ہر طرح سے آنے والی روشنی کے مقدار سے مطابق پانی کے قابل بن جاتے ہیں، جس سے ایک طرح کی دوسرے پوشیدہ پوشاک پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو اب ہمارے پاس موجود ہے ٹروموٹیلس ڈی سی ورم۔ دوستو یہ جنسیاں سمندری پلانٹ کالونی پلاٹ کے کیڑے کا ایک گروپ تقریباً مکمل طور پر شفاف ہے، جس کی وجہ سے شکاریوں کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر اس گروپ میں کم از کم 11 پرجاتیاں روشن چمکیلی رنگوں کا اخراج بھی کر سکتی ہیں۔ دوستو زیادہ تر ٹرومپیس کے کیڑے نیلے رنگ کے چمکتے ہیں، لیکن ایک نوع ٹرومپیس نیسی نے پیلے رنگ کی روشنی پیدا کر سکتی ہے، اور ایسا کرنے والے سیارے ایسے ہی کچھ مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ کچھ ٹرومپیس کے کیڑے اپنے جسم کے چمکتے ہوئے حصے کو پیڑا پیٹا جاری کر کے شکاریوں کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور شکاری کیڑے کی بجائے جسم کے عضو کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو دوستو اب ہمارے پاس موجود ہے سی سلیب۔ دوستو ایک نمکین ایک مکمل شاف بیرل کی شکل کی مخلوق ہے جو ایک ہی وقت میں جینس جسم کے ذریعے پانی پمپ کر کے تیراکی کرتی ہے اور کھلاتی ہے، اور وہ کھانا کھلانے کے لیے پانی میں فائٹو پلینکٹن کو فلٹر کرتے ہیں۔ گریچا وہ جینسن کی طرح تھوڑا سا نظر آتے ہیں، وہ دراصل زیادہ نفیس ہیں اور مچھلی اور کشیرہ تیریوں سے بہت قریب سے وابستہ ہیں۔ ان کا دل اور گلیاں ہیں وہ جنسی طور پر دوبارہ تولید کر سکتے ہیں۔
दोस्तों नमकीन जिंदगी का एक दिलचस्प चक्कर है कि इसकी एक हिस्से के लिए वो खुद ही जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर वो खुद क्लोन हो जाते हैं और लंबे तारों और मुतसल जानदारों की दूसरी शक्लें तश्कील देते हैं। अनफरादी नमकीन बिजली के इशारों के जरिए एक दूसरे से बातचीत करके अपनी तैराकी को अहम आहंग करते हैं। दोस्तों हमारे पास मुद्दा है हाइपरडिस्क। कभी कभी शिफाफ होना काफी नहीं होता। हयातियत को पोशीदा रहने के लिए अपनी बाजू को दूसरी तदबीरों की जरूरत होती है। ये यकीनी तौर पर हाइपराइड का मामला है, एक छोटी सी क्रिस्टेशन जिसमें केकड़े की मुशाहबत है। वो शफाफ होकर शिकारियों से पोशीदा रह सकते हैं, ताहम ये सिर्फ इन्हें अभी तक मिलता है कि शीशे का एक मुत्यारा भी शफाफ है, लेकिन अगर आप इस पर रोशनी डालते हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि रोशनी एक अक्सी होती है, ये समुद्र में एक खास ही मसला, क्योंकि बहुत से शिकारी शिकार का शिकार करते वक्त बायोमेंट्स का सर्च लाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक हालिया मुताले से पता चलता है कि हाइपरराइड की सहालतियों को छुपाने के लिए सादा शिफायत के अलावा भी बहुत कुछ है। इससे पता चलता है कि वो रोशनी में रखना डालने और खुद को करीब करने और इन्हें पोशीदा शक्ल देखने के लिए एक तरह की न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंसदानों ने बाइपर्ड्स के साथ इकसाम का करीब से तजुर्बा करने के लिए एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि एक प्रजाति की टांगें छोटे नानो साइज के बाल जैसे नक्शों में ढकी हुई हैं। इस प्रजाति की लाश और 6 दिगर अफराद एंड साइज के टुकड़ों या दायरा में ढके हुए थे और जिनकी तादाद 100 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक थी। टकराने के छोटे छोटे साइज से रोशनी के बिखराव को कम से कम किया जा सकता है। और दोस्तों साइंसदानों ने पाया है कि नैनोस्टिक्स बारिश और बाल दोनों का मुतराज 100 गुना तक अक्सी को कम कर सकता है। तो इसमें अजीब बात तो यह है कि महकीन के ख्याल में ये डॉलर दरअसल बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास मौजूद है जेप्लिया हैथी। जब स्क्वायर जेप्लिया हैथी और ऑक्टोपस अंकुटेशन पैंसी में भी पोशीदा होते हैं तो वो अपनी आस्तीन को एक नावल बना देते हैं और वो तेजी से शिफाफ होकर सुर्ख रंग के बोरो रंग की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये दोनों बहरहाल 600 या 1000 मीटर गहराई के दरमियान में रहते हैं। नीचे शिफाफ होने से पानी की सतह करीब पोशीदा होने से बहुत मदद मिलती है, क्योंकि सतह से फैला हुआ सूरज की रोशनी सीधे शफाफ नशनों में गुजरती है। जब आप किसी ऐसी रोशनी पर रोशनी डालते हैं जो शफाफ है तो अचानक ये बोर नजर आते हैं। बदकिस्मती से ये गहरे समुद्र में बहुत होता है, जहाँ शिकारी शिकार करते वक्त सर्च लाइट जैसे फोटोफोर्स नामी हल्के फुल्के अज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इन गहराइयों में शिकार अक्सर सुर्ख या सियारे होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नीली रोशनी के आगाज़ कर सकें। जेप्लिया हैथी एक ऑक्टोपस और ऊंची कोट बेंसिक एक स्क्वाड दोनों के माबैन तबादला ख्याल कर सकते हैं, लेकिन वो ये कैसे करते हैं। दोनों या प्रजातियों की जल्द में हल्के एहसास के आलात होते हैं जिन्हें क्रोमोफोर्स कहते हैं। खिलियों में रंगारंग होता है, जब इन्हें रोशनी मालूम होती है तो वो फौरन ही रंगत को बढ़ा देते हैं और जो छोड़ देते हैं। दोस्तों अब हमारे पास मौजूद है सी सैपर। सी नीलम सफिया चोटी साइज की मखलूक है दोस्तों जो गर्म और सब ट्रॉपिक समुद्री इलाकों में रहती हैं। इनका तल्लक ट्रैपिशन के ग्रुप से है जिसको कहते हैं। दोस्तों मुख्तलिफ 4 प्रजातियों ने रोशन रंगों से लेकर सुर्ख और सोने तक बहुत सारे रोशन फरहत बख्श रंगों का इखराज किया है। इनके बारे में जो बात काबिल जिक्र है वो ये है कि एक सेकंड वो चमक से चमक सकता है और अगला वो तकरीबन गायब होता दिखाई देता है। और जिस तरह से वो ये करते हैं और दिलकश है कि इनकी जिल्द या कैपिटल सेल में एक छोटी सी क्रिस्टल प्लेटें शामिल है जो हेक्सागोनल शहद की शक्ल में तरबियत दी गई हैं। दोस्तों क्रिस्टल में ज्ञानीन होता है कि इन 4 टुकड़ों से और एक जोटी जो डीएनए बनाते हैं जो क्रिस्टल पर 3 सोप जैसे सियाल के जरिए एक दूसरे से जुदा होती हैं, जिसे साइटोसोल कहते हैं। साइंसदानों की एक टीम ने पाया कि अगरचे ज्ञानी क्रिस्टल की तुम्हें हमेशा यकसा मोटाई की होती है, ये इसी किस्म की है जो समुद्री नीलम की रंगत का तायन करती हैं। साइटोसोल की गहरी पर 3 रोशनी की लंबाई तौल मौज की इकाई करती हैं जिसे कोपरू सुर्ख या मकरूमी नजर आते हैं। और दोस्तों रंग रोशनी का जाविया भी इन पर असर करता है जो इन्हें मारता है। जैसे जैसे जाविया छोटा छोटा होता जाता है आकाशयुदा रोशनी की तौल मौज कम होती जाती है और ये रंग ज्यादा बनफिशी बन जाता है। अगर जाविया काफी छोटा हो जाता है तो फिर आकाश रोशनी यूवी एक्सपेंड में होती है, जिसका मतलब है कि काम हम इसे नहीं देख सकते। समुद्री नीलमियाँ गायब हो जाती हैं। मकतून पाया कि 45 डिग्री जाविया पर क्रिस्टेशन पर जाने वाली रोशनी इनको पोशीदा बना दिया करती है। दोस्तों अब हमारे पास मौजूद है ग्लासमी बटरफ्लाई। दोस्तों अब तक हमने जितनी जहर बहस सभी शफाफ जानवर समुद्र में रह चुके हैं और इसकी एक अच्छी वजह भी है कि शफाफ होने के लिए आपको ऐसी चीज़ों से मिलने की ज़रूरत होती है कि जो रोशनी के ना जज़ब करती हो और ना ही इनकी अक्कासी करती हो। और ये पौधों जानवरों के लिए जो कि मुश्किल काम है।
जो ज़मीन पर रहते हैं। दोस्तों क्योंकि ज़िंदा वक्तों और हवाओं के ऊपर तक इंडेक्स में इतना बड़ा फ़र्क है कि किसी मादे की ऊपर तक इंडेक्स बयान करती है कि रोशनी इसके ज़रिए कितनी जल्दी सफ़र करती है कि रोशनी किसी कला में सबसे तेज़ी से सफ़र करती हुई गुजर जाती है। और आमतौर पर गंदे हुए मादा स्पिंग को बोलने की वजह से रोशनी इसमें सफ़र करने में ज़्यादा लंबाई लेती है और इसका रफ्तान अंगेज़ अशारिया ज़्यादा होगा। जो उनका हयातियाती नशोनुमा जो कि हवा से कहीं ज़्यादा मोटा हुआ करता है। जब रोशनी की लहरें हवा के जरिए जिस्म को टशों तक सफ़र करती हैं तो वो सुस्त हो जाती हैं। इसकी वजह से रोशनी सिमतों तेज और बदतर को तब्दील करती है और इससे अक्कासी होती है जो कि जानवरों को ज़्यादा मरीज बनाती है। पानी में पानी और हयातियाती तत्वों को ऊपर तक इंडेक्स के माबेन कम फ़र्क है, लिहाजा शिफायत एक आसान काम से है। इसी वजह से यहाँ तक बहुत सारे करीब पोशीदा जानवर क्यों है। एक और वजह जो आपको ज़मीन पर जानवरों के जरिए देखने को नहीं मिलती दोस्तों वो ये है कि हयातियात को मलाने जैसे रोगन की ज़रूरत होती है ताकि इन्हें सूरज से यूवी तक बकारी से बचाया जा सके। ताहम हुक्मरानी के जरिए देखने में कुछ मंशियात है कि एक शीशे की तितली जो कि वस्ती अमरीका में रहती है, अगरचे इसका सारा जिस्म नज़र नहीं आता है और लेकिन इसकी शफाफ पंख शिकारियों के लिए परवास के दौरान इसका पता लगाना मुश्किल बना देते हैं कि तितली अपनी शिफायत को किस तरह हासिल करती है। इस पर नजर डालने के लिए साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे परों की जांच की है। इन्हें न्यूज साइज के छोटे छोटे टुकड़ों मिल जाने के नानो पल कहते हैं जो कि 200 तसदीफी तौर पर बिखरे हुए होते हैं। लंबाई मुख्तलिफ थी, ऐसा लगता है कि नानोस्केल ढांचे के बेतरबियत साइज और तकसीम तितली को इसके परों से अक्कासी को कम से कम करने में मदद करती है। नानो प्लेट्स रोशनी की किरणों को बाजू को मारने में मुदाखलत करते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर पीछे उछलने के बजाय सीधे से गुजर जाते हैं। दोस्तों हमारे पास मौजूद है ट्रांसपैरामनोसिस। दोस्तों इस हुक्मरानी की एक और रायत एक पार्ट बासी सुस्त है जो क्रोएशिया के गहरी गफार में दरियाफ्त हुई थी। गोटी यूनिवर्सिटी और फ्रैंकलिन एक साइंसदानों ने यह नज़ारा लोकोनिया जामा टर्जना बगाल में 980 मीटर जेर ज़मीन रहते हुए मोलस के जरिए देखा जिसमें चट्टानों और रेत से भरा हुआ एक चैम्बर था जिसमें एक छोटा सा निधि जारी है। इस नाटे के तले छोटे छोटे कशकी की नस्ल से जो के तारीख ज़ेरे ज़मीन गारों में पाए जाते हैं और जो खुद भी हरकत करने से कासिर है। वकील का ख्याल है कि वो खुद को नकल व हामिल के नहरों से बहता हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। अगरचे ये बात बायसी यही है कि इसके बावजूद भी सुस्त नुमाया तौर पर दिखाई देता है जिसने इस बात पर रोशनी डाली है कि ज़मीन जानवरों के लिए ये हासिल करना कितना मुश्किल है कि वो समुद्र में रहने वाले क्या करते रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और हाँ अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।